So good afternoon, team. We'll be waiting for our team members to join. Once everybody is there, I'll give you a go ahead, Nizam. Will it be fine? Am I audible to everyone? Yeah, Disha. So I am there. I'm Akhil. So I'll be taking the session. Okay, great, Akhil. So am I audible to you first of all? Yes, yes, yes. Okay, fine, Akhil. You just check by the time are you able to share your screens properly or no, and we will give a test, and then accordingly we'll start by 3:35. We will wait for 5 minutes for our teams to Sure, join. Disha. Sure. Okay, Okay. thanks. Good afternoon, Pradipta sir. Good afternoon. हेलो हाँ बाबा नाହାନ୍ତି କି नमस्ते नमस्ते अच्छा ହଉ ସେ ତମ ଫୋନ ଟା ନେଇଛନ୍ତି ୱେବିନାର ଆଟେଣ୍ଡ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି हेलो दीपाली गुड आफ्टरनून हाँ हाँ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି Good afternoon, Bimal sir. Hello. Yes, sir. You're audible. Good afternoon.
Good afternoon, guys. Pradeep, are you there? Yeah, I am there. I am very much there. So we're expecting some more candidates to join shortly. Sure, sir. We'll wait for them. Hello. Hello. Yes, sir. You are audible. Hello. पीयूष प्रदीप है क्या? Yeah, I'm जी there. सर, प्रदीप सर ने वो बोल भी रहे, he is audible as well. Yeah, I can hear you. Hello. Yes, sir, you are audible, sir. Yeah, I I'm believe just allotting sir few is not able candidates. to hear you, but it will Yeah, take a couple of minutes to, get sorted. yeah, no issue. So I am actually allotting 2, 3 guys. No issues, sir. We will be waiting for them. So Piyush, anyone from Birla has joined? Yes, sir. We have Akhil, who's a trainer. Okay. He'll be taking care of the session. Okay. Yeah, hi, sir. Hi, okay. So we will just wait for 2-3 minutes. More people will join. Then we can start. Sure, sir, sure. Sorry. But Pradeep, ji, there were more people joining in. Hello, Pradeep. Pradeep, sir. Hello. Pradeep, we can't hear you. सर आपकी आवाज आ रही है clearly. Pradeep, sir, are we expecting more people? Yeah, sure. Sir, give a Just, thumbs up just once we. yeah, Hello. one Yes, sir. 1 minute's time. Okay, stop. Sure.
हाँ हाँ आज हेले बाबा ऑपरेशन चलिए जय जगन्नाथ Pradeep ji, we are waiting for you. Go ahead to start because this is very important training, and the two products that we are going to discuss is very important, and I think that will remain the mainstay of our life insurance business. Yeah, So correct. today Actually, we are going to discuss a term plan and one assured return plan, and मुझे लगता है कि ये दोनों प्लान हम बहुत अच्छा बेच सकते हैं. So, sure. but said अपना already we are Yeah, I seeing think we can start now. We can start now. The people may. I had alerted everyone. One. So, Akhil, Yes, sir. I Akhil, we can start. I think तो अब month end है ना, तो इस वजह से आज थोड़ा सा attendance कम है. If कोई required, issue नहीं, sir. training, but I think 11 people are there. Few more will join. Normally 3:10 is when we start. So we can start. You can share your screen and you can start the presentation. And if required, we will do one more training. Sure, sir. Sure. No problems. All right, sir. So, good afternoon, everyone, and thank you, Pradipta sir. You gave us this opportunity to share our product offerings with your team. So, sir, our next 30-40 minutes, I have designed like this that we'll have a brief overview of why a term plan, right? Or in a very simple layman language, that when we are sitting with a customer and we prior to pitching the product, we have to pitch the concept of a solution first to the customer. So on same fashion, there is a small video that I'll be presenting on that what requirements does a term plan fulfill for a client, and then we will discuss the product offering that we have, that how as Aditya Birla Sun Life Insurance, our product can help the customers to protect their families. And then we will have a brief introduction on retirement planning, that why there has to be retirement planning, why one should do retirement planning, and on similar fashion then there will be the other product overview of assured income plus. Right, so this will take around 35 to 40 minutes, and in between the session, if the participants have any questions, so they are free to stop me and ask me whatever doubts they have. All right, so I'll be sharing my screen. So team, first of all, I'll just give my introduction. So my name is Akhil Jindal, and I am a training manager with Aditya Birla Sun Life Insurance. I sit in Delhi, and I manage 7 banks that we have tie up with, all the banks, Indian banks, and some foreign banks as well.
So we can have an interactive session in case you have certain queries, how we are doing in Banca and how people in Banca are pitching the product, so that things can also be covered here. All right, so we'll start with a small video and Yeah. then the product. All right, so just give me a minute. All right. आप जानते हैं कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है? जो रकम आप अपने पूरे जीवन काल के दौरान कमा सकेंगे, उसको हम आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कह सकते हैं। मान लेते हैं आपकी वार्षिक आमदनी 10 लाख है। आपके लगभग 40 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आप कम से कम 4 करोड़ की रकम कमा लेंगे। इस रकम का इस्तेमाल आपके परिवार के मासिक खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, आपके होम लोन की भरपाई, छुट्टियों के खर्चे, आपके कार की ईएमआई, दवाइयों के खर्चे, आपके माता पिता की देखभाल जैसी जरूरतों के लिए किया जाएगा। जरा सोचिए, यदि आपका असमय निधन हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार को जरूरत होगी ऐसे एक सुरक्षा चक्र की जो उनकी देखभाल कर सके, आज भी और भविष्य में भी। ये सुरक्षा आपके परिवार को मिल सकता है लाइफ इंश्योरेंस से। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से आपके परिवार का भविष्य आपके ना रहने पर भी वैसा ही होगा जैसे आप चाहते हैं। तो आपको कितनी राशि की लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, ये जानने की। Alright, so this was the video. This was basically the concept that why हम लोगों को life insurance चाहिए क्यों होता है, ठीक है? So on similar basis, now I will show you a PowerPoint presentation that we have made कि जब हम customers को pitching कर रहे हैं अपने product के लिए, अपने term insurance के लिए, तो what could be the best way and how easily we can swipe in our product into the customer's requirement. So so sir, are you able to see my screen right now? So Yeah, there is sure. so digital ways of pitching concepts. So sir, we are but during the COVID times, we prepared this presentation and very religiously we are following this concept in Aditya Birla that whenever we are going to a customer, either in verbal form, means face to face, or when we are sending a presentation to the customer, so we are using these basic things. सो यहाँ पर हमने सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश करी है कि जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो यहाँ पर स्क्रीन पे देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल्स दैट आर कस्टमर्स enjoy, right? So there are certain customers who are living a very luxurious life. There some are there who are in a comfortable mode, some are hand to mouth, and some are charity, right? So whatever customer we are dealing with, so he will be in one of these criteria. So we have taken here an example ki the client's family lives in a comfortable lifestyle. All right, so the question that we ask from the customer here is कि सर आपकी जो फैमिली है वो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, एंड हु इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि हु इज द पावर बिहाइंड दैट? So the man at work. So you are the one who is responsible because of which your family is enjoying a comfortable life. And what if something happens to you? What if you are not there? जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि अगर आपकी अनसर्टनिटी किसी भी अनटाइमली अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर यू आर नॉट देयर, तो अब फैमिली का क्या होगा? सो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपकी जो फैमिली है, जिनको हमने बहुत प्यार से अच्छे से बहुत सपने हमने उनके लिए देखे, तो देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि जो फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल से नीचे चला जाए। लेकिन क्या हम ऐसा चाहेंगे? क्या हमारे कस्टमर्स ऐसा चाहेंगे? नहीं। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, व्हाट आई कैन डू हियर, ठीक है, सो देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ टर्म प्लान कि अगर आप एक टर्म प्लान बाय कर लेंगे यहाँ पे, तो अगर कल को आप नहीं भी रहेंगे, सो देयर इज मनी एट वर्क, ठीक है, आप जो पैसा छोड़ जाएंगे दैट मनी विल वर्क फॉर योर फैमिली एंड योर फैमिली विल बी प्रोटेक्टेड। एंड जो भी हमारी मेजर रिक्वायरमेंट्स थी हमारी फैमिली की, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि बच्चों की एजुकेशन है, शादियां हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे इस
के थ्रू इस पैसा को जो पैसा हमें मिलेगा उसके थ्रू टैकल हो जाएंगे. So this is how we are trying to give a concept to the customer that sir, if something happens to you, so there is money at work in your absence जो कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखेगी और किसी भी तरीके की कोई भी चैलेंजेस नहीं आने देंगी. So how as an organization we can help you? So sir, we have a product by the name of ABSLI Life Shield Plan. Alright, so it's a term plan. मेजर फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे कि ये जो लाइफ शील्ड प्रोडक्ट है वो हमारे लिए करेगा क्या. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए अपने क्लाइंट्स को, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल. हर कस्टमर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है. हर कस्टमर एक टर्म प्लान को अपने नज़रिए से देखता है. कुछ लोग उसको एक प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट की तरीके से देखते हैं, कुछ लोग उसको एक एक्सपेंस के तरीके से देखते हैं, कुछ लोगों को अपने टर्म प्लान से सिर्फ डेथ के अलावा और भी कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि क्या कोई बीमारियां कवर कर रहे हो आप, अगर कल को मैं डिसेबल हो जाता हूं तो क्या आप मेरे लिए हेल्प करोगे कुछ. तो आप देखोगे कि लाइफ शील्ड हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमने कस्टमर को 360 डिग्री प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी है विद ऑल दी अनसर्टनिटीज. जो भी अनसर्टनिटीज हैं लाइफ के अंदर, जैसे कि डेथ, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस, जैसे कि डिसेबिलिटी, तो आप इस प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे हमने मेजरली सारी चीज़ें कवर करी हैं. सो ऑप्शन नंबर 1, लेवल टर्म इंश्योरेंस. सो इट्स अ सिंपल वेनिला इंश्योरेंस कवर जिसमें हम कस्टमर को 55 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म देते हैं. मैक्सिमम 55 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है, या फिर मैक्सिमम 85 ईयर्स की एज तक हम कस्टमर को कवर करते हैं. If something happens to the customer, minimum age at entry 18. 18, yes sir. 18. So we start by 18, and if something happens to the customer, so we will pay the sum assured. As simple as that. ठीक है. Apart from this, in basic term plan जो हमने अभी डिस्कस करा, we have terminal illness inbuilt. तो टर्मिनल इलनेस का हमारा एक बेनिफिट है सर जो इसके अंदर इनबिल्ट है, जो क्या कहता है कि बाय एनी चांस अगर कस्टमर को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है दैट द कस्टमर विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव नाउ. ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी कस्टमर का सम एश्योर्ड डेथ पे हमने देना था उसका 50% हम पहले दे देते हैं, एंड पॉलिसी वैसी की वैसी कंटिन्यू रहती है. अगर उस पॉलिसी के दौरान कस्टमर की डेथ हो जाएगी तो बाकी का सारा पैसा भी हम कस्टमर के नॉमिनी को दे देंगे. ठीक है. नहीं, मैं एक क्वेश्चन था. हाँ जी. If the person is affected with a disease, तो yes sir, 50% उनको दे देंगे beneficiary. yes sir. Sir, But about the payment of premium, remaining term of payment of premium. So premiums will be waived off sir. अच्छा, if he is availing this waiver of premium benefit. नो सर, तो हमारा लाइफ शील्ड के अंदर आप कोई भी ऑप्शन लेंगे तो हमारा टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट है. अच्छा, ओके. ठीक है, तो टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट होने के कारण अगर कस्टमर को ऐसी कोई भी बीमारी हुई जिसमें वो सर्वाइवल के चांसेस नहीं है उनके, तो 50% तो हम देंगे. फ्यूचर प्रीमियम्स हम लोग वेव ऑफ कर देंगे और पॉलिसी रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म के लिए वैसी ही चलती रहेगी. Who will actually वो terminal illness में है and how it is certified? Alright sir, so any two medical practitioners sir, अच्छा, so they have to give us in writing कि जो भी कस्टमर जिस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उस डिजीज के अंदर उनके जीने के चांसेस नहीं है. यस. तो सर बेसिकली इसमें यही हो जाता है कि समटाइम्स द कस्टमर थिंग्स कि यार जो पैसा मुझे पहले मिल जाए, सो इट गिव्स अ बेटर कंट्रोल टू हिम कि अगर वो अपनी मेडिकेशंस करवाना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं इस पैसे से, तो ही कैन यूटिलाइज इट. अदरवाइज वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट द कस्टमर विल बी एबल टू सर्वाइव. करेक्ट. ओके. So next we have level cover with WOP. ठीक है. So in this what we have done is कि in case of critical illness and total permanent disability. ठीक है, तो अभी जो आपने पहले वाला देखा, पहले वाले में सिर्फ आपका टर्मिनल इलनेस था
इसमें आप देखेंगे कि इसमें नॉर्मल कवर सब वही सब चीजें, लेकिन हमने क्रिटिकल इलनेस और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और ऐड कर दिया इसके अंदर। सो अब अगर कस्टमर को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाएगी, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उन सिचुएशंस के अंदर कस्टमर्स के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। हम कुछ पे नहीं करेंगे, सिर्फ कस्टमर्स के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। और सिमिलरली टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में अगर कस्टमर पैरालिसिस हो जाता है, उनको डिसेबिलिटी, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी है उनकी, तो उन सिचुएशन के अंदर भी हम कस्टमर को आगे के प्रीमियम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी पॉलिसी वैसी ही चलती रहेगी। तो सर ऑप्शन नंबर 1 सिंपल कवर, टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट फीचर है, अलग से उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट फीचर है। If something happens to the customer, so we'll pay the sum assured to the nominee. And अगर कोई टर्मिनल इलनेस की सिचुएशन आ जाती है जिसमें नाउ ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो उसके अंदर कस्टमर हैज़ दिस ऑप्शन कि वो टर्मिनल इलनेस क्लेम करके 50% पैसा पहले दे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सिंपल आपका कवर प्लस हमने क्रिटिकल इलनेस और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी इसके अंदर ऐड कर दी। तो हमारे इसके अंदर 14 डिजीजेज हम इसमें कवर करते हैं, 14 डिजीज हम कवर करते हैं, और उन डिजीजेज में से अगर कोई डिजीज कस्टमर को हो जाता है तो फ्यूचर प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे, और डिसेबिलिटी के केस में। सो थर्ड इज योर इंक्रीजिंग टर्म कवर। सो इंक्रीजिंग टर्म कवर के अंदर क्या है सर कि क्योंकि कुछ कस्टमर्स इन्फ्लेशन को भी माइंड में रखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सो अगर हम सोचें कि आज से 20 साल पहले अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, तो उस टाइम के हिसाब से 1 करोड़ वॉज टू मच, ठीक है, मैं सब कुछ कर पाता उस 1 करोड़ रुपए से। लेकिन और आज की डेट में वही 1 करोड़ अगर मेरे पास है तो शायद उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, मतलब आप उसका इतनी परचेजिंग पावर नहीं है उसकी। तो सिमिलर बेसिस पे अगर हम आज एक टर्म प्लान लेते हैं 1 करोड़ का, तो हमें लगता है कि हाँ यार वो इट्स गुड, अगर यार कुछ हो जाएगा मुझे तो माई फैमिली विल बी एबल टू सर्वाइव। बट इन द फ्यूचर इफ वी विल सी, तो अगले 10 साल 20 साल की अगर मैं बात करूं, सो दिस 1 करोड़ वुड नॉट हैव as much purchasing power as it has today, ठीक है। So certain customers think on these lines, and those customers prefer to have a increasing term plan कि automatically my cover should increase because inflation is क्या there। परसेंटेज में बढ़ेगा, कितना परसेंट? तो 5% से या 10% से। अच्छा, दोनों ऑप्शन है। हाँ जी, 5% या 10% कस्टमर चूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सर 1 करोड़ का कवर कस्टमर ने आज लिया और उन्होंने कहा कि 10% से बढ़ा दो, तो फर्स्ट ईयर का जो 10% होगा यानी कि 10 लाख रुपए, हर साल उनका कवर जो है वो 10-10 लाख रुपए से बढ़ता रहेगा। अच्छा, हाँ जी, सिमिलर बेसिस है 5%। तो अगर हम 1 करोड़ का कवर लिया है 5%। बट एक क्वेश्चन था, ये 10% है, उसका कुछ ये है लिमिट है? क्योंकि 10 साल में तो उसका एक सम अश्योर्ड हो जाएगा, 10% अगर बढ़ रहा है तो प्रैक्टिकली देखा जाए 10 साल में वो 100% उसको एक सम अश्योर्ड मिल गया। हाँ जी, तो 11वां साल 12वां साल और ये बढ़ेगा तो 120%, 30%। हाँ नहीं सर, हम बढ़ा इसका देते कुछ हैं। लिमिट है? इसका हाँ कुछ जी, लिमिट? इट डिपेंड्स अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। मान लेते हैं जैसे कस्टमर की एलिजिबिलिटी आज के सिचुएशन के हिसाब से बनती है 3 करोड़। ओके, ठीक है, तो उन्होंने मेरे से 1 करोड़ 1.5 करोड़ का सम एश्योर्ड ले लिया, तो हम इस हिसाब से उसकी अंडर राइटिंग करेंगे कि जो उनका टोटल सम एश्योर्ड है वो उनकी एलिजिबिलिटी को क्रॉस ना कर जाए। अच्छा अच्छा, तो एक वो पॉलिसी ये में आएगा, बॉन्ड में आएगा कि उनका एलिजिबल सम अश्योर्ड इज दिस एंड सम अश्योर्ड गिवन इज दिस। यस सर। ओके ओके। सो सर इसके अंदर आपका सिंपल इंक्रीजिंग कवर है। एडवांटेज ये है कि इसके अंदर टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट फैक्टर है, ठीक है। तो अगर कस्टमर को कोई टर्मिनल इलनेस हो जाता है तो जो भी एप्लीकेबल सम एश्योर्ड होगा उस टाइम पे, इंक्रीज्ड सम एश्योर्ड होगा, उसका 50% उनको मिल जाएगा एंड द पॉलिसी विल गो ऑन सेम बेसिस। देन इज योर फोर्थ ऑप्शन के अंदर इंक्रीजिंग कवर भी है और साथ के साथ आपके पास क्रिटिकल इलनेस और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी भी है।
ठीक है। इसमें एडवांटेज ये है सर कि पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान, मान लेते हैं मैंने 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया था और 10 साल के बाद मेरे को क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो पहली चीज़ प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे मेरे। दूसरा, क्या जो मेरा टर्म इंश्योरेंस बढ़ता था हर साल, क्या वो बंद हो जाएगा बढ़ना? तो नहीं, ठीक है। तो आपका कवर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, इवन you have been diagnosed with a critical illness, but still the company will keep on increasing your cover as per your eligibility. तो ये इसका एडवांटेज है। सो ऑप्शन नंबर 5, तो जैसे कुछ लोग इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं, वैसे कुछ लोग होते हैं जो डिक्रीजिंग सम इंश्योर्ड प्रेफर करते हैं। ये कौन सी क्लाइंट एज होती है सर? ये वो क्लाइंट एज है जो कहती है कि एट टिल द एज ऑफ 60 और 65 आई हैव ह्यूज लायबिलिटी, कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी इनकम से फैमिली को प्रोटेक्शन चाहिए, एंड देयर आर सर्टेन लोन्स, कि मेरे घर का लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है, कुछ लायबिलिटीज़ हैं। बट वंस आई क्रॉस 60 और 65 मोस्ट ऑफ माई लायबिलिटीज़ विल बी टेकन केयर ऑफ। तो उस टाइम पे मुझे इतने बड़े कवर की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो ऑप्शन नंबर 5 वर्क्स। तो इसके अंदर कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि कस्टमर जो है वो हर 5 साल के अंदर अपने सम एश्योर्ड को 5% से रिड्यूस करा सकते हैं। तो sometimes it is seen वो मॉर्गेज इंश्योरेंस में पॉलिसी का कोलैटरल में जो इंश्योरेंस करवाते हैं तो मोस्टली वो मॉर्गेज रिडम्पशन टाइप का होता है। तो रिड्यूसिंग, मान लीजिए कस्टमर पहला साल में जितना प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया था, आउटस्टैंडिंग उतना है, सम एश्योर्ड को वो लोग कंपनी वाला जो है वो ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं, सो दैट इन केस ऑफ एनी टाइम एनी अगर अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, कस्टमर नहीं रहता है, तो वो जो इंश्योरेंस जो है वो डायरेक्टली इंडेमनिफाई कर देगा उसका एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग। राइट सर, सो इट वर्क्स ऑन सिमिलर बेसिस सर। या So then is option number 6 sir. Option number 6, all the benefits of decreasing cover, कि आप अपने हर 5 साल के अंदर आप अपने कवर को एडजस्ट करा सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन है वहाँ पे, तो फिर वो जो डिक्रीजिंग सम इंश्योर्ड है, डिक्रीजिंग प्रीमियम तो डिफरेंस आएगा, जो नेचुरल जो सम इंश्योर्ड में जितना प्रीमियम आ रहा है तो डिक्रीज में तो क्या एवरी 5 इयर्स के बाद प्रीमियम डिक्रीज होगा या पहले से वो उसी हिसाब से मैनेज होके चलेगा? पहले ही मैनेज होके चलता है सर। जैसे अगर आप देखो इंक्रीजिंग मोड है, तो इंक्रीजिंग मोड के भी अंदर हम हर साल प्रीमियम नहीं बढ़ाते, वो पहले से ही प्रीमियम्स आपके डिक्रीजिंग के अंदर भी आपका यही आएगा, पहले से ही एडजस्टेड होंगे। राइट, यस सर। सो नेक्स्ट इज योर डिक्रीजिंग, कम होगा पर एक ही प्रीमियम रहेगा थ्रू आउट। हाँ जी, कम होगा मतलब एक ही प्रीमियम रहेगा, एकदम करेक्ट सर। 6 इज योर डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस विद वेवर ऑफ प्रीमियम। तो इसके अंदर ये सर डिक्रीज होता रहेगा एवरी 5 इयर्स आपका कवर, एंड आपको क्रिटिकल इलनेस और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का बेनिफिट भी है, ठीक है। तो अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाएगी या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगा तो प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 7, सो कुछ कस्टमर्स जो होते हैं सर वो टर्म इंश्योरेंस को एज अ एक्सपेंस देखते हैं, ठीक है। तो उन कस्टमर्स के लिए हमारे पास ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है सर, अगर आप इसको एज अ एक्सपेंस देखते हैं सो यू कैन बाय अ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। सो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंदर क्या रहेगा सर कि जो भी कस्टमर ने हमारे प्रीमियम भरे हैं, अगर वो पूरी पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव कर जाते हैं तो हम उनके सारे का सारा प्रीमियम जो उन्होंने हमें दिया था वो हम वापस कर देंगे, ठीक है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम मोड हो जाता है ये। एंड ऑप्शन नंबर 8, रिटर्न ऑफ प्रीमियम विद WOP, मतलब कि अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम के सारे बेनिफिट्स प्लस क्रिटिकल इलनेस और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के अंदर प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन अराइज होता है सर कि मान लेते हैं मैंने 40 इयर्स का पॉलिसी टर्म लिया, 10 साल के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया, मैंने लिया था रिटर्न ऑफ प्रीमियम विद WOP, ठीक है। तो 10 साल के बाद जब मुझे हार्ट अटैक आया तो बिरला ने कहा आपके प्रीमियम वेव ऑफ कर देते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। अब लेकिन मैं पूरा पॉलिसी टर्म सरवाइव कर गया, तो अब व्हाट बिरला इज गोइंग टू रिटर्न बैक टू मी, वेदर वो 10 साल का प्रीमियम और टोटल प्रीमियम जो एक्चुअल में मुझे पे करना चाहिए था, ठीक है। तो द आंसर इज कि टोटल प्रीमियम जो पे करना चाहिए था वही रिटर्न किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने सिर्फ 10 साल का प्रीमियम दिया था तो वो रिटर्न होगा।
ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस कि आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ना लेते हुए क्यों WOP भी साथ में पिच करें। अच्छा, इस पॉलिसी का मैक्सिमम एज एट एंट्री क्या है? और इसमें सर 60। अच्छा, ओके। तो 60 एज का आदमी को हम लोग 25 इयर्स की टर्म दे सकते हैं? यस सर। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर सर, देयर आर सर्टेन कस्टमर्स जो जॉइंट लाइफ प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ के लिए हम सेम पॉलिसी दे सकते हैं, तो उसको हम लोग जॉइंट लाइफ प्रोटेक्शन बोलते हैं। जॉइंट लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर आपके प्राइमरी होल्डर और सेकेंडरी होल्डर रहेंगे, और उस सिनेरियो के अंदर आप जो भी प्राइमरी होल्डर का इंश्योरेंस कवर है उसका 50% हम सेकेंडरी होल्डर को दे सकते हैं। तो मान लेते हैं प्राइमरी जो है वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेते हैं, और जो तो सेकेंडरी को हम 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं। एडवांटेज ये है सर इसमें कि कई बार हाउसवाइफ्स होती हैं, ठीक है, हाउसवाइफ्स या हाउस हस्बैंड्स हैं जो जिनको हम अदरवाइज इंश्योरेबल कैटेगरी में वो नहीं आते इनकम क्राइटेरिया की वजह से, तो यहाँ पर हम उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज जॉइंट लाइफ एडवांटेज। एंड उसके बाद आपके पास प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो आपके पास प्रीमियम पेमेंट टर्म एज शॉर्ट एज 6 ईयर्स आपके पास अवेलेबल है। 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स आपके पास अवेलेबल है। एंड रेस्ट इज योर रेगुलर पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रेगुलर पे अवेलेबल है। एंड मैक्सिमम टर्म 55 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 85। अपार्ट फ्रॉम दीज सर कुछ राइडर्स, ठीक है, तो राइडर्स में हम डिटेल में नहीं जाएंगे सर, बट येस देयर आर सर्टेन राइडर्स जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस, सर्जिकल केयर एंड हॉस्पिटल केयर, ये एडिशनल राइडर्स हैं जो आपके टर्म प्लान को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट यू हैव अ प्रोडक्ट टर्म प्लान बाय द नेम ऑफ लाइफ शील्ड। आपके पास नॉर्मल प्लान, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ये 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और इन चारों ऑप्शंस के साथ आप WOP बेनिफिट को अटैच कर सकते हो। अगर आप WOP बेनिफिट इसके अंदर अटैच करवा देंगे तो आपके पास क्रिटिकल इलनेस और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए भी आपका कस्टमर जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था, ये एक्सीडेंटल राइडर कितने तक दे सकते हैं? अरे सर, तो 2 करोड़ तक दे सकते हैं सर मैक्सिमम, लेकिन वो बेस सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ओके। Okay. So we have covered this. मान लीजिए किसका वाइफ वो अर्निंग होल्डर है, उनका हस्बैंड अर्निंग होल्डर नहीं है, उनका वाइफ अगर जो 5 करोड़ लिया है तो उनका हस्बैंड को 2.5 करोड़ दे सकते हैं। तो प्रीमियम किस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे? हाउस वाइफ या डेट ऑफ बर्थ या हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ? हाँ, अगर हाउस हस्बैंड है, हाँ हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड है सर, तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग 1 करोड़ से ऊपर 50 लाख से ऊपर नहीं दे सकते उनको। अच्छा, मतलब सम एश्योर्ड रहेगा जो नंबर फर्स्ट वाला को 1 करोड़ और जो हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड जो है। हाँ जी। नहीं, मेरा क्वेश्चन, मेरा मतलब वो नहीं है, समझो जो कोई 5 करोड़ लिया है तो 50% आप बोले थे ना, उनका 50% 2.5 करोड़ हो रहा है उनका हाउस हस्बैंड। हाँ, वो सिनेरियो वो है कि सर जब दोनों वर्किंग हैं, अगर दोनों की ITRs हैं, ठीक है, अगर दोनों की ITRs हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। प्राइमरी होल्डर का 10 करोड़ है तो हम सेकेंडरी होल्डर को 5 करोड़ तक का कवर दे सकते हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर हाँ, अगर जो सेकेंडरी होल्डर है, ये मेल मेंबर जो है ही इज वर्किंग, मेल या फीमेल जो भी है, सपोज उन्होंने ज्यादा सम एश्योर्ड प्रपोज कर दिया कि मेरे को 2 करोड़ चाहिए, उसका मिसेस को या तो हाउस हस्बैंड को, तो उस समय हम 50% तो नहीं दे पा रहे, आप बोल रहे 50 लाख को ले कन्फाइंड हो जाएगा, तो 2 करोड़ लेके ये 50 लाख हो पाएगा ना? नहीं सर, ऐसा नहीं, हमेशा केस में हम वैसा केस नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, इट आंसर्ड माय क्वेश्चन, या थैंक यू। डन। ठीक है, सो सर वी आर डन विद लाइफ शील्ड। तो सर एक करेक्शन बस कि जो मैक्सिमम एज है ना सर वो इसमें 65 है, 60 नहीं है, 65।
ठीक है, सो ऑलराइट, सो डन विद दिस। सुनील, थोड़ा I think अंदाज देख पाएंगे कितना प्रीमियम कैसा आता है, थोड़ा सा एक और उसमें एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन्स इन द सेंस सर, जो हमारे जो राइटिंग में आएंगे वो यही आएगा सर कि एक सुसाइड है, साइड के अंदर ये है। रमेश, एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस में अनलाइक हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा होता है, बट लाइफ इंश्योरेंस में मोस्टली सुसाइड कांसेप्ट उसमें कुछ दूसरा इंश्योरेंस कंपनी का कुछ एक्सक्लूजन है, मैं जानता हूँ, इसलिए क्वेश्चन अरेंज किया। उसमें क्या है मैं बता दूंगा। मोस्टली सुसाइड होता है। बाकी वो तो है, सुसाइड विद इन 1 ईयर है। और जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस मैं जनरल बोल रहा हूँ, फिर आप बताना। लाइफ इंश्योरेंस में जनरली सुसाइड होता है एंड कोई कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स करते हैं तो रेपुटेशन क्लॉज लागू होता है, 2 साल के अंदर ये होता है तो पॉलिसी कंपनी विल फॉरफिट द क्लेम। बाकी नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस में और कुछ लागू नहीं होता है। कोई कंपनी क्या बताओ तो थोड़ा, और कहाँ पे क्या एक्सक्लूजन है? जैसे अविवा लाइफ में अगर रात में आप गाड़ी चलाएंगे तो ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ होगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, उनका एक्सक्लूजन है, लेकिन कोई बताते नहीं। जैसे वहाँ दैट इज एक्चुअली वो एक्सीडेंटल राइडर जो है, वो राइडर के ऊपर ये लोग ऐसे शर्त लगाया, बट इन जनरल दिस इज रेयर। यू आर करेक्ट, मे भी अगर वो लोग लगाते होंगे, मेरे को तो आइडिया नहीं है। बट ऐसे जो मेरा कस्टमर के साथ हुआ है, अविवा में वो टर्म इंश्योरेंस लिया था और लेकिन उनको मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ है क्या जो नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं है। जो आपको एक्सक्लूजन्स प्रदीप सर ने एकदम सही आपको वो बताया था कि सुसाइड एक एक्सक्लूजन है जो मेंशन रहेगा। अदरवाइज जो आपका ये नाइट ड्राइविंग या ड्रंक ड्राइविंग है, ये एज सच एक्सक्लूजन में नहीं है सर, क्योंकि मान लो किसी कस्टमर ने डिक्लेयर किया हुआ है कि नहीं, ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस में एक्सीडेंटल ये तो नहीं होता है, वो इन जनरल रहता है। दैट इज इन जनरल आज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938, आज पर इंश्योरेंस एक्ट IRDA का 1999 में भी वो लागू है। मतलब कोई ड्रंकन कंडीशन में इफ समबडी इज फाउंड, देन उसको कोई भी कंपनी क्लेम नहीं देगा आज पर इंश्योरेंस एक्ट। एक्सीडेंटल ये नहीं मिलेगा उसको, सम एश्योर्ड मिल जाएगा, सम एश्योर्ड मिल जाएगा, मतलब बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, बट वो जो एक्सीडेंटल लेकर नहीं। ठीक है सर, ओके। सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फेज सर। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन की कितनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है अपनी हमारी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टर्म प्लान इज दी वन ऑफ द इजीएस्ट वे जिससे आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो फॉर अनसर्टनिटीज लाइक डेथ, क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द सेकंड फेज कि ज़रूरी नहीं है कि इफ मुझे कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। सो देयर आर चांसेस कि मुझे कुछ नहीं हो और एंड आई एम सर्वाइविंग, ठीक है। तो अगर मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, ठीक है, आई क्रॉस्ड 40, आई क्रॉस 50, आई क्रॉस 60, सो वन ऑफ द मेजर फेज ऑफ माई लाइफ, एज ऑफ माई लाइफ विच इज 60, क्योंकि 60 के आसपास एक एज आ जाता है जब वी स्टॉप अर्निंग, यार इनकम गेट्स स्टॉप। तो उसके बाद भी आई एम सर्वाइविंग, सो हाउ आई हैव प्लान्ड माय रिटायरमेंट, हाउ वेल आई हैव मेक श्योर कि आफ्टर 60 मेरी लाइफ जो है वो स्मूथ चलती रहे जैसे अभी चलती है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी अ स्मॉल वीडियो टू यू नो जस्ट टू हैव एन आइडिया कि अखिल जी एक क्वेश्चन था। आई थिंक यू आर गोइंग टू न्यू प्लान, बट इसका थोड़ा सा ये जो अपना टर्म प्लान का प्रीमियम का एक कुछ एग्जांपल मिल सकता है क्या? तो सर यू गिव मी एनी एज। अच्छा, मान लीजिए कोई 40 इयर्स का है, 1 करोड़ सम एश्योर्ड बोलता है। 40 एज एंड मेल एंड पॉलिसी टर्म वी विल गिव 45, राइट। सो इसमें अगर हम जाते हैं सर तो 6 इयर्स के लिए अगर हम जाते हैं 1 करोड़ का कवर, तो द प्रीमियम नहीं रेगुलर प्रीमियम करते हैं, रेगुलर रेगुलर में आएगा सर कुछ 27,000। अच्छा, 1 करोड़ का। यस सर।
और ये 40 साल का 60 इयर्स तक पेमेंट कर देगा वो 60 इयर्स ना, ऐसा नहीं है। 20 इयर्स का ये नहीं है, नहीं सर, इसमें आपको 6, 8, 10 मिल जाएगा, 10 तक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अखिल जी, मेरा एक क्वेश्चन था, ऐसा बिरला का जो टर्म इंश्योरेंस में ऐसा क्या है जो सर बेसिकली टर्म इंश्योरेंस कुछ बताइए। जो अपने यूएसपीज रखते हैं वो यही सर कि आपके पास शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शंस हैं, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शंस हैं, इंक्रीजिंग मोड, डिक्रीजिंग मोड आपके पास अवेलेबल है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी, रिटर्न और प्रीमियम भी आपके पास अवेलेबल है। तो जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे ना तो टर्म प्लान के अंदर इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो आपको कितना ड्यूरेशन कंपनी ऑफर कर रही है, और क्लेम सेटलमेंट रेशोज हो गए, और कितने तरीके के फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। क्योंकि टर्म प्लान की ना सर हर कस्टमर की अपना एक तरीका होता है उस प्रोडक्ट को देखने का। जैसे मान लेते हैं मैं टाटा में जाता हूँ। So guys, just to give you an example, अभी we were exploring for one of our clients 10 crore का term, and पहले हमने ICICI को अप्रोच किया तो जो प्रीमियम आया, एंड फिर अभी बिरला का ये लाइफ शील्ड हमने अप्रोच किया। बिरला का लाइफ शील्ड वाज 30% cheaper than ICICI. Premium difference was around 60,000. So it is quite significant at the age of 37, both in case of smoker and non-smoker category. So this term plan that has been offered to you, and this is being explained to you, is what we find is one of the cheapest, and with the rest of the features, terminal illness and other things built in, I think this is a very good proposition for the customers. And आपने को जाके इसमें स्टडी करके इसको आगे लेके जाना चाहिए। मार्केट में ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि टर्म प्लान में बेसिकली तो प्रोटेक्शन के लिए जाता है, तो लोग जो है कॉस्ट कॉन्शियस बहुत होते हैं, तो कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा इंश्योरेंस देते हैं। इट इज द चीपेस्ट प्लान अवेलेबल टर्म इंश्योरेंस के हिसाब से, वो भी मैं सर बोल। थैंक यू। या Hi guys, today I'm going to share with you why you should do retirement planning today. My name is Dr. Sanjay Tolani and I'm an intergenerational planner. Reason to do retirement planning. Imagine you have a tree, right? A tree grows depending on how strong its roots are, and those roots will decide how tall the tree grows. As the roots become stronger and stronger, the tree becomes stronger and stronger. If you cut the tree, the roots will allow the tree to grow back. However, if you cut the roots, the strongest of trees will eventually fall down. And that's the same thing with our life. You see, our roots are absorbing the nutrients from our income, and that income is deciding how tall our tree grows. As soon as we retire, our income instantly stops, and that is the problem. Most people forget to plan for that. As soon as your income stops, the strongest trees fall down. And that's the reason why you need to do retirement planning. So when you retire, the income, the roots continue to get the nutrients so that the tree stays strong for generations to come. Focus on the roots. And the roots in the world of finance is based on only one variable, which is income. Focus on making sure you have perpetual income as long as you're alive. And that's what keeps you going. That's retirement planning. Very good. Very well said. Yes, sir. So this was that is excellent copywriting. Yes, sir. So I was just surfing with some content I required कि क्या हम लोग retirement planning है, तो I watched this video और मुझे लगा कि इन्होंने बहुत ही simple उसमें they just told us कि why retirement planning should be there. So the same kind of confidence and the same kind of concept we have to give to our customers, sir, कि why retirement planning is important. And once they understand it, then it becomes easier for us to pitch them
different product categories that we have in the I would say retirement category. Alright, so now I'll just show you a product. Okay, so once we have given this concept in the mind of our customer, then how can we fill it with our product? Okay, so I'll show you the presentation. All right. So, sir, when we talk, we are talking about retirement, or we are talking about a source of income, okay, which is apart from other sources of income that we have. Okay, so it's not necessary कि कोई लोग 60 पे ही retire हों. Every individual has his own thought process कि when he wants to get retired, and the only concept is that we should have a secondary source of income available with us. Okay. So why we require a secondary source of income, and how beneficial it would be for us. So when there is a secondary source of income, so first thing, upgrade. So we give the best lifestyle to our family. तो ये हम देखते हैं सर कि apart from the salary that we are getting, so अगर हमारा कुछ rental income है और अगर कुछ दूसरे sources से आपकी income generate हो रही है, तो it helps to upgrade the standard of living your family. Pampering, when you have some extra source, so you can pamper your family a little more. Celebrate milestones, so sometimes when you have that extra money with you, so you tend to celebrate a little more. And fourth, the most important thing, you have a retirement, and that will be a worry free retirement. So the retirement would be for everybody, but whether that retirement is worry free or not, this is in our hands. We have to design our life, our investments in such a way that our retirement becomes worry free. So if in case I want my retirement to be worry free, so I need an ideal investment, and how that ideal investment should look like is that it should have a guaranteed and tax free return. तो ऐसा नहीं, market में you have many products available which will give you good returns in long term, but are they guaranteed? Are they tax free? So this is one of the questions. Second, no reinvestment risk. So I should invest in such a plan that doesn't have reinvestment risk. So here we are trying to focus a little bit on fixed deposits. So fixed deposits may you have a reinvestment risk. So third is flexibility. Flexibility ki, I can customize the product according to my requirement. So in this product, you will see that there is a lot of flexibility given to the client. He can himself decide whatever premium payment term he wants to keep, till how many years he wants the income, how he wants the income. So all those flexibility is available here. And risk cover. All right. So risk cover should be there. So life insurance, as you know, that it is the only instrument that is providing the risk cover. So as simple as that, अगर हमें एक worry free retirement चाहिए और we want a secondary source of income, so it should be guaranteed, tax free, कोई reinvestment risk नहीं होना चाहिए, flexibility रहना चाहिए कि हाँ मेरे को income कैसा चाहिए, और एक risk cover अगर उसके साथ associated हो तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है. So we introduce you a plan, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग guaranteed regular income दे रहे हैं for 20 years, 25 years और 30 years. ठीक है. Now this is up to the customer. He can decide कि 20 साल का रेगुलर इनकम चाहिए, 25 साल का रेगुलर इनकम चाहिए, या 30 साल का रेगुलर इनकम चाहिए. एंड दैट रेगुलर इनकम क्या करेंगे आप उस रेगुलर इनकम का? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज पॉइंट्स कि एडिशनल इनकम आता है तो आपका अपग्रेडेशन ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द फैमिली, पैम्परिंग, celebration of the milestone, and the most important one, which is worry-free retirement. So the name of the product is Assured Income Plus Plan. Okay, Assured Income Plus Plan. It's a non-linked, non-participating product, means it works 100% on the guaranteed platform. ठीक है. तो जो भी पैसा हम लोग दे रहे हैं वो सारा का सारा guaranteed है. अब कितना दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो गारंटेड ये हमने डिस्कस किया. अब दो बेनिफिट ऑप्शंस हैं आपके पास इसमें, जैसे कि हमने बताया कि हम कस्टमर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं. सो वी हैव गिवन दिस पावर टू द कस्टमर टू डिसाइड वेदर जो पैसा वो हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो ही यूटिलाइज करना चाहते हैं एज इनकम, या वो उसी पैसे में से कुछ लेगेसी क्रिएशन भी चाहते हैं.
ठीक है, तो हमने यहाँ पर कस्टमर को ऑप्शन दिया है कि वो सिर्फ इनकम्स ले लें या इनकम के साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स भी ले लें। तो आप देखेंगे अभी आगे कि हम कस्टमर को ये फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि कस्टमर ने डिसाइड किया कि मुझे रिटर्न और प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आप सिर्फ इनकम दे दीजिए, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है कि वो कह रहे हैं मुझे इनकम भी चाहिए और मैंने जितना भी पैसा दिया था वो मेरे को वापस भी चाहिए। तो एक कस्टमर कैन यूज दिस फ्लेक्सिबिलिटी। सो कस्टमर हैज द ऑप्शन एज शॉर्ट एज 6 years कि यार 6 साल या 8 साल, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहे तो 12 साल। तो 6, 8, 12 का कस्टमर के पास प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शंस हैं। Then they have to wait for 2 years and then they can enjoy the income for next 20, 25 और 30 years. ठीक है, क्यों कस्टमर लॉन्ग टर्म रुके? सो वी हैव सम लॉयल्टी बेनिफिट्स। तो जितना लॉन्ग टर्म कस्टमर हमारे साथ स्टे करेगा उतनी ज़्यादा लॉयल्टी बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। इंश्योरेंस कवर, हाई इंश्योरेंस कवर, तो 11 टाइम से लेके 15.8 टाइम्स तक का इंश्योरेंस कवर हम इसमें देख रहे हैं। एंड IRR, ठीक है, सो द मोस्ट हाईएस्ट मतलब आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट USP ऑफ दिस प्लान इज इट्स IRR। तो आप इसमें देखेंगे कि हम लोग 5.95% तक का IRR कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज वर द मेजर फीचर्स कि ये कैसे, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। नाउ आई विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल, ठीक है। तो इन दिस व्हाट वी हैव डन इज मेल एज 47 years, ठीक है। तो 5 लाख रुपए का प्रीमियम वो दे रहे हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने चूज किया 12 साल, पॉलिसी टर्म है 13 साल। तो ये पॉलिसी टर्म कैसे निकल के आता है सर? जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म है +1 हम करेंगे तो वो पॉलिसी टर्म बन जाएगा। वाई शुड आई नो दिस कि पॉलिसी टर्म क्या है? बिकॉज आपका लाइफ कवर जो है वो सिर्फ पॉलिसी टर्म तक ही चलेगा। तो अगर आपने 6 साल का PPT सेल किया है तो +1 मीन्स 7 years, तो 7 साल का कवर। 8 years का प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने सेल किया है तो +1 मीन्स 9 years, तो 9 years का कवर। 12 + 1 मीन्स 13 years का इंश्योरेंस कवर। Then you will get the income, ठीक है। तो in this example we have taken as 25 years of income. So now first income benefit with ROP option। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कस्टमर ने हमको 5-5 लाख रुपए 12 साल के लिए दिया, ठीक है। उसके बाद 14th ईयर से उनकी एक गारंटेड इनकम विच इज 5,96,000 रुपीज, ठीक है। दिस इज गारंटेड। 5,96,000 रुपीज की गारंटेड इनकम अगले 25 साल के लिए मिलती रहेगी, ठीक है। सो आई जस्ट रिपीट, 5-5 लाख रुपए कस्टमर ने 12 साल के लिए हमको दिया और हमने कस्टमर को 5,96,000 रुपीज की गारंटेड इनकम फॉर नेक्स्ट 25 years दे दिया। दिस मीन्स अगर 5,96,000 की एक रेगुलर इनकम है, अगले 25 साल तक कस्टमर को मिल रहा है, तो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए हमने कस्टमर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड एट लास्ट कस्टमर ने हमें जितना भी प्रीमियम पे किया था उसमें हम लोग लॉयल्टी एडिशंस एक बूस्टर ऐड कर देते हैं, विच इज अराउंड 26%, ठीक है। इन दिस एग्जांपल इट इज अराउंड 26%। तो जो भी कस्टमर ने हमें टोटल प्रीमियम दिया था उसमें हम 26% करीब ऐड कर देंगे। एट लास्ट वी आर गिविंग हिम 75,36,000 रुपीज मोर। तो 1.5 करोड़ रुपए के करीब उनको एज इनकम दे दिया। Yes sir. Towards the end, actually last at the maturity तो नहीं, ये towards the end last को after 26 years तो हम लोग we are paying him 60 lakhs plus the loyalty addition, यही है ना? Yes sir. So सिंपल सर, जितना कस्टमर ने प्रीमियम दिया है, जैसे 60 लाख रुपए उन्होंने दिया, 2 साल का वेट, 5,96,000 की एक रेगुलर इनकम, और लास्ट में जितना प्रीमियम कस्टमर ने दिया था उसमें हमने लॉयल्टी एडिशंस ऐड करा और रिटर्न कर दिया। तो इन दिस एग्जांपल हुई थी कस्टमर ने 60 लाख रुपए में दिया था और कस्टमर को हमने 2.24 करोड़ वापस कर दिया, विच इज ऑलमोस्ट आपका 4 times ऑफ द मनी। So sir, any questions on this? Good. Good questions, guys.
ये देखो, ये एक्चुअली स्टैंड अलोन मेरे एक एडिशन कहना था. इफ यू लुक एट द प्लान, दिस इज नॉट ए स्टैंड अलोन कस्टमाइज. ये रिटायरमेंट प्लान आज इट इज नहीं है फॉर नेम सेक, बट इट वर्क्स मोर देन द ब्यूटी ऑफ द रिटायरमेंट प्लान. रिटायरमेंट प्लान का अगर टिपिकल रिटायरमेंट प्लान देखेंगे, उसमें देयर इज ए वेरी पॉपुलर ऑप्शन की return of regular premium plus return of purchase price when the person expired. तो ये जो प्लान डिजाइन किया गया है, एंड इम्पोर्टेंटली जो रिटायरमेंट का जो बेनिफिट मिलता है, जो एन्युटी मिलता है, एन्युटी इज इनफैक्ट एन इनकम. तो एन्युटी इज टैक्सेबल. बट ये जो प्लान हमको बताया जा रहा है, यू कैन सी, ये जो पेमेंट हमको कस्टमर को मिलेगा एवरी ईयर, जैसे बताया जा रहा है कि 5.98 लाख एवरी ईयर मिलेगा, दैट इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री. एंड लास्ट को आप देख रहे हैं कि वो परचेज प्राइस, जैसे परचेज प्राइस क्या है, जितना पैसा दिया था उतना, तो 60 लाख भी दे रहे हैं, प्लस लॉयल्टी एडिशन भी दे रहे हैं, और एवरी ईयर टैक्स फ्री भी करके उसका रेगुलर प्रीमियम भी दे रहे हैं. सो दिस इज a very quality product which we can converse our customer. कुछ क्वेश्चन है तो पूछो भैया. Anil, I think this is not a pension plan. This is a regular plan. हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, तुम नहीं सुन पाए क्या? हम यही बोल रहे हैं कि अगर रेगुलर पेंशन प्लान रहता तो पेंशन में दो बातें टैक्सेबल होगा. हाँ, एन्युटी जो है दैट इज ए टैक्स इन द हैंड ऑफ द कस्टमर. एंड एन्युटी में दो चार प्रकार के ऑप्शन होता है, जैसे पेंशन फॉर लाइफ, गारंटेड पेंशन फॉर 5 years एंड लाइफ, गारंटेड पेंशन फॉर 10 years एंड लाइफ. एंड और एक ऑप्शन है उसमें कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, पूरा रेगुलर पेंशन रहेगा, एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन द डेथ ऑफ द कस्टमर. तो ये प्लान जो है, एक्चुअली ये भले पेंशन प्लान नहीं है, बट ये हर साल पेंशन की तरह पैसा देता है, एंड व्हिच इज टैक्स फ्री. एंड लास्ट को जो बल्क अमाउंट दे रहा है 60 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन 15 लाख मिला के 75 लाख, इट इज एज गुड एज द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस या मोर देन दैट. तो पेंशन प्रोडक्ट नहीं होके पेंशन से क्वालिटी रिटर्न दे रहा है, एंड गारंटेड है, टैक्स फ्री है, एंड व्हिच मेक्स लॉट ऑफ सेंस, वैल्यू प्रोपोजिशन टू आवर कस्टमर. बहुत अच्छा. और सर, तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सर. तो रिसेंटली हम एक कस्टमर से मिले, सो ही वाज अराउंड 62, ठीक है. तो वी वांटेड टू बाय दिस प्लान अंडर हिज. अच्छा, ये गुड क्वेश्चन. इसका मिनिमम एज एट एंट्री, मैक्सिमम एज एट एंट्री, ये सब थोड़ा बता दीजिए. ऑलराइट. सो सर, द मैक्सिमम एंट्री एज इज 60 इयर्स तक हम देते हैं. मिनिमम एज एट एंट्री, हाँ. सो द मिनिमम एज एट एंट्री इज लाइक कि अगर माइनर हैं, ठीक है, तो माइनर हैं, तो माइनर के लिए यू हैव टू कंसिडर द एज कि वो मेजर हो जाए जब पॉलिसी टर्म खत्म हो. तो फॉर एग्जांपल हम लोग 5 साल का बच्चा है जिसको हम लोग ये लाइफ एश्योर्ड बनाना चाहते हैं, तो 5 साल के बच्चे को मैं 6-7 वाला जो है 6 years का पीपीटी वो नहीं कर पाऊंगा. 12 साल राइट. तो वो वाला करें तो ये वी कैन से दिस इज मिनिमम एज एट एंट्री. अगर 12 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 5 इज द मिनिमम एज एट एंट्री. अगर 6 साल का लेते हैं तो मिनिमम एज एट एंट्री इज 11 years. अगर 8 साल का लेते हैं तो 9 years इज द मिनिमम एज. राइट. एंड ऑब्वियसली आज यू टोल्ड कि मैक्सिमम एज एट एंट्री इसमें कितना बोल रहे हैं आप? 60 तो 73 तक हमारा लास्ट मैच्योरिटी एज है. 73 पे मैच्योर हो जाना चाहिए. हो जाएगी. हाँ. बट उसको क्या उनको दिया जाएगा हम लोग 20 years तक. यस सर. सो आपके जो ऑप्शन है 20, 25, 30 years का ये सब लागू होगा. ये सब. तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. आप कुछ बोल रहे थे, हम आपको रुकवा दिया. मैं सर ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था. तो कस्टमर वाज वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट, ठीक है. तो बट द ओनली पेन पॉइंट ही वाज हैविंग वाज कि यार थोड़ा पहले अगर कर लेता
थोड़ा पहले अगर कर लेता तो रिटर्न्स भी थोड़े बेटर हो जाते और थोड़ा सा समय भी मिल जाता कॉर्पस क्रिएट होने का और एक रेगुलर इनकम आने का। तो मुझे एक फील आ रही है सर, नॉर्मली जो ये एज कैटेगरी होती है 60-65 की एज कैटेगरी होती है, उनके पास उस टाइम पे लमसम पैसा आ जाता है, बट दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन कीपिंग दैट अमाउंट विद देमसेल्व्स। वो दे आर मच हैप्पियर अगर उनको वो पैसा कोई रेगुलर इनकम के मोड पे देता रहे, उनकी रिक्वायरमेंट है पैसे की और उनको मिल जाए। So when we are meeting customers जो 40-45 के एज स्लैब में हैं, we should give this point to them कि sir, if you want retirement, if you want proper regular source of income, guaranteed source of income, tax-free source of income, so you must buy this product. And what we have done is we have ensured कि आपको पास liability ज़्यादा समय तक ना रहे, या आप long term savings भी कर सकते हो। तो अगर आप liability ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहते तो आप 6 रख लीजिए, मीडियम रखना चाहते हैं तो 8 रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं मेरी रिटायरमेंट के लिए, मेरे पास अभी समय है, तो आप 12 ईयर्स के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए भी जा सकते हैं। बाकी मोस्टली थिंग्स इसमें सब सेम रहेंगी सर, हर एक में आपका 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा और सब में 20-25-30 ईयर्स का आपके पास इनकम स्लैब्स अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स में आपके पास सिर्फ 20 और 25 अवेलेबल है, 30 नहीं है। बाकी 6 और 8 में आपके पास 20, 25, 30 सब अवेलेबल है। अच्छा, ये प्रीमियम उनका कैसा क्या रहता है? प्रीमियम मिनिमम प्रीमियम या मिनिमम कुछ ऐसा? मिनिमम प्रीमियम इज 50 सर, 50,000। 50? यस सर। ओके। ओके, सो निजाम सर, एनीथिंग टू ऐड हियर? नहीं, आई थिंक हमने तो कवर कर लिया ना। सो एक 630 वाला भी ऑप्शन बता देते अखिल तो बेटर होता। जैसे हमने 12-25 का ऑप्शन दिया है, हाँ जी, एक 630 का भी ऑप्शन दिखाना बेटर होगा। 630 ओके सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। 630 ना, एक सेकंड। एनीथिंग पीयूष, आपको कुछ ऐड करना है तो बता देना, कुछ और डिटेल्स। और वी कैन मेक ए इलस्ट्रेशन। हाँ सर, मैं इलस्ट्रेशन ही डिजाइन कर रहा हूँ, बस एक सेकंड। तो और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन आस्क, और हम लोग इसके एफएक्यूज वगैरह भी शेयर कर देते हैं विमल सर के साथ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहाँ पे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज वी हैव द एक सेल्स बडी ऐप। ओके, ये सेल्स बडी ऐप ये होगा कि आप खुद ही आप हैंडी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप खुद ही इलस्ट्रेशन वगैरह जो भी कोड्स वगैरह चाहिए आप क्रिएट कर सकते हो, पर्सनलाइज क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट सर, सो निजाम सर ये मैंने सेल्स बडी से ही निकाला है, तो ये आप देख सकते हैं सर। इसमें यहाँ पर होगा हाय मिस्टर, यहाँ पर FF है, तो आपके क्लाइंट का नाम आ जाएगा, ठीक है, आपके क्लाइंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। और फिर आपका ये एश्योर्ड इनकम प्लस जो भी प्रोडक्ट हम लोग पिच कर रहे हैं, तो इट्स अ स्मॉल प्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पर बनाया है। तो इसमें हम जैसे हमने 40 एज लिया है, मेल लिया है, 8 ईयर्स एनुअल PPT, 9 ईयर्स का पॉलिसी टर्म और फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन। तो एनुअली 5-5 लाख रुपए कस्टमर पे करेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ है कि उनको गारंटेड एनुअल इनकम कब तक आएगी, फीचर्स वगैरह ये हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका एक गिव एंड गेट है। तो कस्टमर हमको 40 लाख रुपए देगा और हम कस्टमर को कुछ 1,39 लाख रुपीस के अराउंड रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग 1,40 लाख रुपए करीब रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसा एक टाइमलाइन बन के आ जाएगा सर, ठीक है, जिसमें उसको दिखेगा कि उसने ये पैसा दिया 49th ईयर पे जाके उनकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन गया, विच इज 2,98,300। और लास्ट में 50,24,000 रुपए अलग से ये। और एक उनके लिए लास्ट में ये फ्लो, जो हम कस्टमर को फ्लो दिखाते हैं लिस्ट्रेशंस के अंदर, कि सर 5-5 लाख रुपए दिया और फिर
सेकेंड ईयर से आपको ये 2,98,300 की इनकम फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स ये उनके पास आती रहेगी और लास्ट में एक मैच्योरिटी अमाउंट। तो सर एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ठीक है, एनी क्वेश्चन? सो पीयूष, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है दैट सेल्स बड्डी जो हमारा ऐप है, विदाउट एनी यूजर आईडी पासवर्ड वी कैन जनरेट द कोड्स, इलस्ट्रेशन, जैसे ये प्रेजेंटेशन अभी अखिल ने दिखाया, एंड वी कैन जनरेट बाय सेल्फ। तो कस्टमर के सामने हम मोबाइल के लैपटॉप के थ्रू वहाँ पे दिखा सकते हैं उनको। अच्छा, जो भी प्रेजेंटेशन है, तो इट्स अ पर्सनलाइज्ड प्रेजेंटेशन। Okay, team, do we have any questions? Pradipta sir? ठीक है, I have discussed actually. Very good. Both the plans actually having fast term plan, having a lot of flexibilities, features, and as shared with us, one of the cheapest plan available. Basically, term plan is measured in terms of cost only, because other than that, its value proposition basically is the risk cover, and considering that as the pivotal kind of thing, this is one of the best product available in the market. And so also this is assured plan. Yes, 50,000, but is the minimum. Yeah, but guys, we can think of ki ek retirement ka pura legacy fund the customer is generating, because continuously उसको 20 साल 30 साल तक पैसा मिल रहा है, एंड ऊपर से at his demise उसका beneficiary जो है, he is getting he or she is getting back the lump sum along with the loyalty addition. So it makes a lot of sense actually. थोड़ा सा अच्छा पैसा डाल के रखेगा तो उसको अच्छा मिलेगा, and so that his family's life standard will be maintained or can be upgraded. So I think both the plans stands having lot of value in the market. I thank on behalf of Team Odisha, I thank our Akhil ji and team Birla Sun Life, the head of his team. सर एक रिक्वेस्ट है, एक मैंने लिंक भेजा है सर अटेंडेंस के लिए। वो चैट बॉक्स में दिख जाएगा। Fine, Akhil, I have this manual attendance done, so this should not be a problem. Sure, sir, sure. Okay, fine, Akhil. Thank you so much, Akhil, for the session. Thank you, Nizam. I hope our sales team were, able to understand everything, and if you have any doubts, we'll have a separate session again. Will it be fine? Yeah, no issue. There was no, this will be fine, because I think there are 3 plans, 2 we have covered. So whenever the next plan will be covered, we can take this kind of other than term plan, we can take the rest of the plans. Right. So we definitely will be benefited by another session. Right. Yeah, fine, sir. Thank you so much. Thank you, team. Thank you. Thank you, Nizam ji. Thank you, Akhil. Thank you, Pradipta ji. Thank you. Thank you, guys. Yeah, thanks a lot. Thank you.